Assalamu alaikum class. This is our 12th online lecture of differential equations. In last lecture, we solved differential equations for ordinary point. When we have ordinary point, actually we were finding the series solution, and in those finding those series solution, we discuss ordinary points and singular point, regular singular point, and we solved one question with respect to ordinary point. In today's lecture, we will solve, or we will see how we solve differential equations for regular singular point. Now, first of all, you people should remember what is singular point and then what is regular singular point. So, when x is equal to 0, is regular singular point, when x 0 is regular singular point of differential equation, तो हम तब किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. एक्चुअली आज हम ये काम करेंगे कि अगर आपके पास x 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो पहले हम वर्किंग रूल डिफाइन करते हैं हमेशा, तो इसके भी वर्किंग रूल्स हैं. नाउ लेट्स सी वो वर्किंग रूल्स क्या हैं, और फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, सो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं. आपको पता है दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन and the coefficient of second order derivative is p naught of x, and the coefficient of first derivative is p1 of x, and the coefficient of y is p2 of x. Okay, this was given differential equation. We wrote it and named it as equation number 1, and this is p naught of x. This is equal to 0 at x is equal to 0. If this is equal to 0 at x is equal to 0, we know it will be regular singular point. This is definition of singular point. Okay, if p naught of x is equal to 0 at x is equal to 0, then it is regular singular point. So as this is a regular singular point, so now we will see how we will solve for singular point. Sorry, let's move towards back and see. Now this was the first step. We wrote the given ordinary differential equation. We checked whether it's regular singular point or not, and then we will define the series solution, which is y is equal to x raised to power m into a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to an xn and up to so on. This is series solution as we defined in the last lecture as well. But what is the difference from there to here? The difference between them is this x raised to power m. In last, when we were solving question with respect to ordinary point, there was no x raised to power m in the series solution, but here we have x raised to power m in this series solution. Okay, we name it as equation number 2. This would be the series solution of equation number 1. Okay, और फिर हम क्या करेंगे, we will find dy by dx, sorry, remove this dx square. We will find dy by dx and d2y by dx square from this equation. Okay, then जब हम अपने सोल्यूशन का डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मेन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. सो पुट y dy by dx and d2y by dx square into equation 1 and simplify it, equating the coefficients of like power of x as we did in the last lecture. So equating, we are equating the lowest degree of x, means we will equate first x raised to power 0, then x raised to power 1 terms. So it will give a quadratic equation in m.
How it will give a quadratic equation in M, we will see later in the question. This equation is called induced equation. जो इक्वेशन हमारी कंपैरिजन करने के बाद आएगी लोएस्ट डिग्री ऑफ एक्स से, हम उसको, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इन एम, वेरिएबल एम होगा उसमें, तो वो इक्वेशन हम क्या कहेंगे, दैट इज़ इंड्यूस्ड इक्वेशन. हम उस इंड्यूस्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सपोज कर लेते हैं जो उस इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो डेफिनेटली उसको सॉल्व करने से उसके रूट्स आएंगे, तो वो जो m1 और m2 अगर दो रूट्स आ रहे हैं वो उसके सोल्यूशन है, डेफिनेटली उसके सोल्यूशन है. नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रूट्स. अब वो जो रूट्स हमारे इंड्यूस्ड इक्वेशन से आएंगे m1 m2, हम उसके रिस्पेक्ट से बताएंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा है. एक्चुअली हमारा सोल्यूशन डिपेंड ही उन रूट्स की नेचर पे करेगा. ओके, रूट्स हमारे मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं, उसमें से 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे. केस 1 है कि अगर आपके पास दोनों रूट्स इक्वल नहीं है, m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 माइनस m2 इज़ नॉट एन इंटीजर. ठीक है, पहला रूट ये है कि पहला केस ये है कि अगर दोनों रूट्स एक तो सेम नहीं है, एक 1 है तो दूसरा 2 है या 3 कुछ भी, लेकिन 1 नहीं है. ठीक है, तो दोनों सेम नहीं है, और दूसरा ये सेम नहीं है तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो कोई इंटीजर ना हो. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा c1 इंटू वाई. ओके, दिस इज़ मल्टीप्लाइंग c1 इंटू वाई एंड दिस y इज़ एट m इज इक्वल टू m1. हम जो भी y सीरीज सोल्यूशन से निकालेंगे उसमें m1 रूट की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको c1 से मल्टीप्लाई कराएंगे. ओके, प्लस c2 इंटू वाई मीन्स c2 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय y एट m इज इक्वल टू m2. फिर हम दोबारा से y को y में सेकेंड रूट को पुट करेंगे और उसको फिर c2 से मल्टीप्लाई करा देंगे. दिस विल बी द कंप्लीट सोल्यूशन for the roots which are not equal to each other, also their difference is not an integer. Okay, what is the other case? The second case is when m1 is equal to m2. जब हमारे क्या है, दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हों. जब आपके दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन, दैट विल बी y इज इक्वल टू c1 इंटू वाई. चूँकि हमारा m1 ले m2 ले, एक ही बात है, दोनों रूट्स सेम हैं. c1 इंटू वाई एट m1 प्लस c2 इंटू पार्शियल y ओवर पार्शियल m एट m1 मीन्स दिस इज c1. ये वो y है जिसमें हम m1 की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर c1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस c2 किसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, y को विद रिस्पेक्ट टू m हम पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे और फिर उसमें m1 को पुट करके c2 से मल्टीप्लाई करा देंगे. फॉर द केस व्हेन बोथ रूट्स विल बी सेम, द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी दिस वन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड केस. ओके, थर्ड केस देखिए हमारे पास, व्हेन m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 मीन्स दोनों रूट्स हमारे पास डिफरेंट हैं, एंड अदर कंडीशन इज m1 माइनस m2 इज़ एन इंटीजर. मीन्स दोनों रूट्स डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है, और उनका डिफरेंस भी एक इंटीजर आता है. केस 1 से मिलता जुलता है सिर्फ यहाँ तक. केस 1 में होता है कि उनका डिफरेंस भी इंटीजर ना हो. सो दिस इज केस नंबर 3 व्हेन बोथ आर नॉट इक्वल एंड देयर डिफरेंस इज एन इंटीजर. ओके, लेट्स से m1 मस्ट इज ग्रेटर देन m2. सो अगर इस तरह के हमारे पास रूट्स हों तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, y इज इक्वल टू c1 इंटू y एट m इज इक्वल टू m1 plus c2 into partial y over partial m at m is equal to m2. This will be the complete solution for case 3, which is m1 and m2 are not equal and their difference gives an integer. Now let's move towards the question. When we will solve the question, you people will understand more clearly the working rules. So let's solve the question. The question is solve differential equation which is differential equation हमारे पास क्या है, 2x square into d2y by dx square plus x into dy by dx minus x plus 1 into y is equal to 0. Okay,
Here, this is given differential equation. Name it as equation number 1. From working tools we know, first we will check what is p naught of x. P naught of x is the coefficient of higher derivative, which is second derivative. So this is 2x square. Now check whether x is equal to 0 is regular singular point or not. So when we put x is equal to 0, p naught of x is equal to 0. जब हम x को 0 पुट करेंगे, दिस इज 2 इंटू एक्स स्क्र मीन्स 2 इंटू 0 स्क्र, इट इज़ ऑल्सो 0. So p naught of x is equal to 0 at x is equal to 0. So this is regular singular point, and we know when x is equal to 0 is a regular singular point, then how we solve or how we find the series solution of differential equation. Now we know the series solution for equation number 1, which is y is equal to वर्किंग रूल्स में मैंने, अगर आपको याद हो तो एक्स रेज टू पावर एम को कॉमन करके लिखा हुआ था, इनटू सीरीज़ लिखी हुई थी. ठीक है, यहाँ पे क्या किया, अंदर सिर्फ एक्स की पावर एम को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो वो ये इक्वेशन बन जाएगी. पहले ए नॉट था, यहाँ पे ए नॉट एक्स रेज टू पावर एम हो गया है. फिर ए वन एक्स था, एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई होगा तो वो पावर जेड हो जाएंगी, एक्स की पावर एम प्लस वन वन एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज सीरीज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2. ओके, सीरीज सोल्यूशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का जब नाम दे देंगे, उसके बाद हम उस इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं. क्योंकि हमें उसे अपनी मेन इक्वेशन में पुट करना होता है. सो वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सीरीज सोल्यूशन जो है उसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम ए नॉट एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन. मैं ये पूरी इक्वेशंस नहीं बोलूँगी, ठीक है. आपको पता है सिंपल डेरिवेटिव लिया है, सिंपल डेरिवेटिव. आपको पता है एम माइनस वन, दिस इज़ पावर, दिस इज़ कॉन्स्टेंट, लाइक एक्स क्यूब, एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 5, और पावर हो तो वो पहले आ जाती है और नेक्स्ट एक्स की पावर एक कम हो जाते हैं. दिस इज़ डेरिवेटिव rule. So I differentiated for the first time. Now as I know, as you people know, we need higher derivative, second derivative. So again differentiate this equation. It will gives m into m minus 1 a naught x raised to power m minus 2 plus m into m plus 1 a1 x raised to power m minus 1 up to so on. जब आप लोग इसको लेक्चर को समझेंगे तो आप लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए. ओके, अब आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स भी फाइंड कर लिया हमने, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर भी फाइंड कर लिया है, एंड वी नो. अब हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. और आपको पता है हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी 2x स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू y is equal to 0. This was our equation number 1. So put in it what this y, this dy by dx, and this d2y by dx square from this, and in the above line series solution y was written. So put all these three terms in this equation. It will give huge line, equation. So this is 2 into d2y by dx square we have already find. Where, let's check, let me show you people. When I differentiate it, this is d2y by dx square, और इससे ऊपर हमारे पास क्या है, dy by dx, और उससे ऊपर हमारे पास क्या है, y. सो हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, और इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करते हैं तो दैट इज़ 2 इंटू दिस होल वैल्यू इज़ ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर. नाउ प्लस दैट वॉज एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. हम डी वाई बाई डी एक्स की क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करके ही लिख रहे हैं. आप चाहें तो पहले एक्स को बाहर रख लें, अंदर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करें और बाद में उसको मल्टीप्लाई करा लें. मैंने दोनों काम एक ही स्टेप में किए हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा के लिखा है. ओके, एक्स को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है. देन इट इज़ माइनस इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई. एक्स प्लस 1
दो टर्म्स का एक सम है जो y से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये माइनस एक्स वाई माइनस वाई दो टर्म्स बनते हैं। तो दिस इज़, यहाँ पे हमने y को x से मल्टीप्लाई करा के फिर लिखा है, एंड दिस इज़ माइनस y। आप क्रॉस चेक करेंगे खुद सॉल्व करके कि इन टर्म्स में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। ओके अब ये क्या है, 2 × 2x² dy by dx स्क्र प्लस x × dy by dx माइनस x प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हमने सिर्फ अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जो सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव y था उसको पुट किया है। ओके अब हम क्या करेंगे, जब हम ये कर लेते हैं तो हमने रूल्स में बताया था कि हम सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेट करेंगे। ओके now equating coefficients of lowest power of x to 0, x raised to m to 0। हम जो लाइक x की पावर हमारे पास m है लोएस्ट पावर, फिर है x raised to m प्लस 1, फिर x raised to m प्लस 2, तो इन सब में लोएस्ट हमारे पास बन जाता है x raised to m। सो हम सब की सब सीरीज़ में से, क्योंकि हमारे पास 4 सीरीज़ ऐड हुई हैं, 2x² dy by dx स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx माइनस x प्लस 1 इंटू वाई। तो सब में चूँकि हमने सीरीज़ सोल्यूशन ही को डिफ्रेंशिएट करके पुट किया तो चारों सीरीज़ हैं। तो हम उनमें से देखेंगे कि सबसे पहले x की पावर m के कोफिशिएंट्स क्या हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पहले में आता है x पावर m का कोफिशिएंट 2m इंटू एम प्लस 1 a नॉट, ठीक है। दूसरे में प्लस m इंटू ए नॉट माइनस ए नॉट। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको हिसाब पता चलेगा। ओके अब हम क्या करते हैं, हम तीनों में से ए नॉट को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जो रिमेनिंग क्या है हमारे पास 2 इंटू एम स्क्र प्लस 2m प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज़ 2m स्क्र माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें 2m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0 implies m इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1/2। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने रूल्स में बताया था कि जब हम इक्वेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो m में बनेगी, ठीक है, और इंड्यूस्ड इक्वेशन, और हम उसको क्या है उससे रूट्स फाइंड करेंगे। और रूट्स क्या बताएंगे कि हमारा सोल्यूशन, रूट्स की नेचर से पता चलेगा हमारा सोल्यूशन क्या है, ठीक है। उसके लिए हमने फिर क्या किए थे, नेक्स्ट 3 केसेस बनाए थे कि रूट्स आपके डिफरेंट हैं सेम है, और अगर डिफरेंट हैं तो क्या उनका डिफरेंस इंटीजर आता है या नहीं आता। ओके सो हेयर द रूट्स आर डिफरेंट। ओके द फर्स्ट कंडीशन इज checked, the roots are different, okay, and what is m1 minus m2, if we minus it 1 minus minus 1/2 is equal to 3/2, which is not an integer. So this is case 1. If this is case 1, what will be the complete solution of differential equation? The complete solution of differential equation will be, the complete solution of differential equation will be y is equal to c1 into y plus c2 into y. This y at m is equal to 1 first root, and this y at m is equal to minus 1/2. Now what we need to find y at m is equal to 1 and y, which is the resolution, at m is equal to minus 1/2. अब हमें क्या करना है, अपनी y वाली इक्वेशन में m की जगह पे पहले 1 पुट करना है, जो भी आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और फिर उसकी जगह m की जगह पे माइनस 1/2 पुट करना है, जो भी आएगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। ओके लेकिन जब हम क्या है कि जब हम m को रूट्स की वैल्यूज़ को y में पुट करेंगे तो वहाँ पे आपको याद हो हमने जो सीरीज सोल्यूशन डिफाइन किया है उसमें a0 a1 a2 a3 ये वैल्यूज़ भी हैं जो हमें चाहिए हैं, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, a0 a1 a2 अप टू सो ऑन इन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ओके उनको हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट एक्स रेज टू पावर m प्लस 1 का, पहले हमने एक्स रेज टू पावर m के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, अब हम इक्वेट करें एक्स पावर m प्लस 1 का, उसको कंपेयर इक्वेट करें तो पहली सीक्वेंस से सीरीज से हमें मिलता है 2m इंटू एम प्लस 1 इंटू a1, इस एक्स रेज टू पावर m प्लस 1 का कोफिशिएंट है ये, ठीक है। फिर जो अगली सीरीज सम हो रही है उसमें m प्लस 1 इंटू a1, उससे अगले में माइनस a0 और इससे नेक्स्ट में है माइनस a1 इज इक्वल टू 0। सो
A1 वाली टर्म्स अलग करें, A0 वाली अलग करें, ठीक है। A1 वाली ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इनमें से A1 कॉमन ले, अंदर ये बचता है, A0 को दूसरी साइड पे ले जाएं। सो A1 को हम A0 की टर्म में ले आए हैं। A1 इज इक्वल टू A0/2m² प्लस 3m। अभी ये क्या है किया हमने, एक्स की पावर m+1 का कॉफिशेंट्स को इक्वेट किया। इससे पहले हमने एक्स की पावर m की कॉफिशेंट को इक्वेट किया था। अब हम क्या करेंगे, एक्स की पावर m+2 के कॉफिशेंट्स को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द कॉफिशेंट ऑफ एक्स पावर m+2 विच इज़ पहली सीक्वेंस है 2 इंटू m+2 इंटू m+1 a2 प्लस m+2 इंटू a2 माइनस a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0. Okay, now multiplying this, or it's up to you people whether you want or not. So taking common a2 and a1 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे. So a2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, a2 इज इक्वल टू a1 बाय 2m² प्लस 7m प्लस 5. ये हमारे पास a2 की वैल्यू आई है. अगर आप देखें तो a2 हमारा a1 की टर्म में आया है. अगर हम चाहें तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर तो A0 A1 में आना है, जो हम A1 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं. आप इसको भी A2 में पुट कर सकते हैं. दिस वैल्यू A0/2m² प्लस 3m, हम इसको कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पे A2 में. ठीक है, अब क्या है, हम A1 और A2 फाइंड कर चुके हैं. पुट A1 एंड A2 इंटू वाई. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स. आपको पता है हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू A0 x रेज टू पावर m प्लस A1 x रेज टू पावर m प्लस 1 प्लस A2 इंटू x रेज टू पावर m प्लस 2. हमने A1 और A2 की वैल्यूज़ फाइंड की थी और उनको सीरीज सोल्यूशन y में पुट कर दिया है. ठीक है, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, अगर आपको याद हो, हमने अपना कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना था, जो कि था केस 1 वाला, दिस वन, C1 इंटू वाई एट m1, C2 इंटू वाई एट m इज इक्वल टू -1/2. अभी हम सिर्फ y फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद हम m को 1 और -1/2 पुट करेंगे और फिर इनसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आएगा. ठीक है, तो हम अभी कहाँ हैं, y को फाइंड करने में. ओके, नाउ ये हम y फाइंड कर चुके हैं. ठीक है, ये y हम फाइंड कर चुके हैं. अब इसमें क्या है, इस m की जगह पे दिस m, इन सब m को क्या है, एट m इज इक्वल टू 1, जो हमारा पहला रूट है उस पर इवेल्यूएट करेंगे. m को 1 पुट किया, हमारी इक्वेशन ये बन गई. आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा. ठीक है, फिर m को -1/2 पुट किया इसी इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई, सॉरी हमारी सीरीज़ ये बन गई. अब इन दोनों को उठा के हम अपनी थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है, विच वाज y इज इक्वल टू C1 इंटू वाई एट m इज इक्वल टू 1 प्लस C2 इंटू वाई एट m इज इक्वल टू -1/2. फिर हम इनमें जब पुट कर देंगे तो हमारा क्या है, सोल्यूशन आ जाएगा. सो C1 ही रहेगा, y एट m इज इक्वल टू 1 और y एट m इज इक्वल टू -1/2. ये और इसी ऊपर वाली इक्वेशन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं. आप इसमें पुट करें, मल्टीप्लाई करें और सॉल्व कर लें. ठीक है, लेकिन आप सॉल्व करके आंसर लिखिएगा, इसके बाद आप खुद ही कर लीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.